Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year semester 4 data structures. Today's topic is priority queue. Basically a priority queue is a queue in which the elements will be having some priority values assigned to them, and whenever we have a new element to be inserted, it will be inserted according to its priority value. These priority values can be kept in ascending, that is from greater priority to lower priority, that is descending order, or you can also keep it from least priority to highest priority, that is your ascending order priority. So the formal definition is a priority queue is another variation of your queue structure. Here each element has been assigned a value called priority of element. An element can be inserted at any position in queue according to its priority. A priority queue may be divided into two types, mainly ascending or descending priority queue, decided by a system administration. So now let's have a look at the figure that shows priority multi-queue. So as you can see in this queue, the queues, the elements are kept in the queue. All along with them, some priority positions are also stored. For example, A is your front, P is your rear. These are the elements inserted, and A is having priority value P1, B P2, X Pi, and rear Pn. So a priority queue supports only two operations. There can be only two operations that can be done on a priority queue. Either you can insert an item or you can remove the item having largest key. If the item priority has equal keys, that is two values are having same priority, then normal rule for them followed is FIFO. दो वैल्यूज आई है, दोनों वैल्यूज की प्रायोरिटी सेम है, तो फिर जो पहले आई है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोरिटी क्यू. दे आर either you can do it using array or you can use multi-queue implementation using double linked list, using heap tree. There are four ways. Okay, so first one is array implementation, second one is multi-queue implementation, third one is using doubly linked list, fourth one is heap tree. Now let's see what is an application of a priority queue. In a time sharing computer system, scheduling of job task. जो हम जब टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं तो जॉब्स को स्केड्यूल किया जाता है. तो जो भी डिफरेंट टास्क को हम स्केड्यूल करते हैं, लाइक प्रिंटिंग या सीपीयू को एक्सेस करने का टाइम एक्सेट्रा, ये सब होता है यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू. सो बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर प्रायोरिटी क्यू. नाउ we will look at an algorithm that removes and processes the first element from priority queue using array implementation. This is important that we are going to use the array implementation. Okay, just like we have discussed in our previous videos also, whenever we are writing an algorithm, the name of the algorithm followed by the parameters required, that is a variable required in the algorithm. The name should be relevant to its work. So p delete, because this is going to delete an element from a priority queue, so P. Okay, so some relevant name can be given. PQ, of the name of the array, front, position of front item, rear, position of the rear item which has to be deleted. Item deleted from priority queue will be held by the variable item. जो आप क्यू में इस आइटम को डिलीट करोगे उसको फाइनली आप इस वेरिएबल में स्टोर करोगे. ये एक वेरिएबल है जो होल्ड करेगा आपके डिलीटेड वैल्यू को. फ्रंट आपके ऑब्वियसली फ्रंट की पोजीशन है और रेयर आपके रेयर की पोजीशन है, और पी क्यू उस एरे का नाम है जिस पे आप वर्क कर रहे हो. ठीक है, सो आई थिंक सो दिस इज वेरी क्लियर, एंड दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर. नेम ऑफ द एल्गोरिथम, parameters, and then description of the algo and parameters. The first step, like in every other step, the first thing is if front is null. You have to check whether your front is null. Okay, so if front is null, then obviously your queue is empty. Front null है, उसमें कुछ भी नहीं है. जिसमें कुछ नहीं है वो क्या है? खाली है.
क्या कोई खाली चीज से आप कुछ डिलीट कर सकते हो? कभी नहीं। तो ये सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ये अंडर फ्लो सिचुएशन है। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू, इफ आई आस्क यू टू pour water from an empty jug, you will say me there is no water, what, how will we pour the water? Similarly, अगर आप एक खाली array से if somebody is asking you to delete an element, you cannot do it, your queue is empty, you cannot do it. It's an underflow condition. Okay, but suppose it's not an underflow condition, that means your front is not null, that means you have something in your queue. In that case, how are you going to delete? Using this step. जो भी फ्रंट में वैल्यू होगी, बिकॉज डिलीशन टेक्स प्लेस एट फ्रंट एंड इंसर्शन टेक्स प्लेस एट रेयर इन केस ऑफ क्यूज। ओके, तो जो भी इस क्यू, इस एरे के फ्रंट पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको डिलीट करो और उस वैल्यू को ट्रांसफर कर दो इस वेरिएबल में जिसका नाम आइटम है। और अब आपका पी क्यू फ्रंट हो चुका है टोटली एम्प्टी और वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है आइटम वेरिएबल में। अंडरस्टूड? नाउ सपोज ये तो आपने डिलीशन कर दिया, लेकिन अब डिलीशन होने के बाद नया फ्रंट कैसे निकाला जाए? तो कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट थिंग, सपोज करो कि एक ही आइटम था क्यू में, ठीक है, देयर वाज ओनली वन आइटम इन योर क्यू, दैट मीन्स योर फ्रंट वाज इक्वल टू रेयर। इसका मतलब फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पे थे, और अगर दोनों एक ही जगह पे थे और वो भी आइटम हमने डिलीट कर दिया तो फ्रंट भी नल हो गया और रेयर भी नल हो गया। ठीक है ना? सो सिंपल, इफ फ्रंट वाज इक्वल टू रेयर, इन दैट केस नाउ फ्रंट एंड रेयर बोथ आर नल, रिटर्न एंडिफ। ओके, नाउ update your front position. That means your new front will be front plus 1. Process item return. ठीक है, ये तो उस केस की बात हुई जब एक ही एलिमेंट था, बट अगर एक एलिमेंट नहीं है आपके फ्रंट में, ठीक है, तो ये क्यू है सपोज करो, अब ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो आपने किसी भी एलिमेंट को अगर डिलीट किया है सपोज फ्रंट से इस एलिमेंट को, तो नया फ्रंट कौन सा होगा? उसके बाद वाला। ये तो चला गया बेचारा, तो अब ये बन गया नया फ्रंट। तो नए फ्रंट पोजीशन यानी ओल्ड फ्रंट पोजीशन प्लस 1 आइटम मिल चुका है। डिलीटेड वैल्यूज आइटम वेरिएबल में है, रिटर्न। Okay, so this was an algo to remove and process the first element from priority queue using array implementation. If you have a doubt कि प्रायोरिटी क्यू है तो लीनियरली कैसे हो रहा है, तो डेफिनेशन के टाइम पे एक चीज़ बोली गई थी कि प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज तो प्रायोरिटी वाइज दी रहती है, पर इंसर्शन या तो असेंडिंग प्रायोरिटी में होता है या डिसेंडिंग प्रायोरिटी में होता है। मतलब इसके बाद वाली प्रायोरिटी इसके एडजेसेंट बॉक्स में ही होगी, हर बार फ्रंट उसके बाजू में ही मिलेगा आपको। ठीक है, so this is it, and next will be procedure to insert an item in priority queue using array. So now we have seen the deletion one. Next we are going to see the insertion priority queue. So logic of this algorithm is very straightforward. Follow the logic of inserting an item into the array. सबसे पहले search the position where item can be added according to its priority value. First step क्या करोगे आप? आपके पास जो नया आइटम आ रहा है उसकी जो प्रायोरिटी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसकी पोजीशन सर्च करोगे अपने क्यू में, एरे में। अगर पोजीशन नहीं मिल रही है तो उसको ले जाके सबसे पीछे रख दो, मतलब उसकी प्रायोरिटी किसी से मैच नहीं हो रही है, उसकी बीच में नहीं आ रही है, मतलब मैचिंग यानी कंपैरिजन में किसी के बीच में नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स इट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी और द लीस्ट प्रायोरिटी। सो जस्ट इफ पोजीशन इज नॉट फाउंड देन ऐड आइटम एट द एंड एंड इट इंडिकेट्स दैट नो प्रायोरिटी और वेरी लो प्रायोरिटी इज असाइन्ड। ओके, so this is it. This is only the step-wise explanation has been given to this. Now there's an example. Consider the priority queue in figure 6.1 which is maintained by 2D array. So we are going to see this how we are going to maintain a 2D array queue. See, by mistake they have written 6.11, it's 4.11. okay, पहले तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर आफ्टर इंसर्शन दिस ये वेरिएबल है, इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी, ये इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, फ्रंट में ये सब है, रेयर में ये सब है। ये कौन सा एरे दिख रहा है? 2 डायमेंशनल एरे, ना कि एक सिंगल एरे बट 2D एरे है।
रो कॉलम में। तो पहले एरे का फ्रंट 2 है और रेयर 3 है। सेकेंड एरे का फ्रंट 1 है, रेयर 4 है। थर्ड एरे का फ्रंट भी 1 है, रेयर भी 1 है। फोर्थ एरे का फ्रंट इज 5 एंड रेयर इज 3। फ्रंट इज 5 एंड रेयर इज 3। लास्ट एरे फिफ्थ एरे का फ्रंट भी 4 है, रेयर भी 4 है, दैट इज दिस। ठीक है, फ्रंट इज 5, ये फोर्थ एरे फ्रंट इज 5 एंड रेयर इज 3, सर्कुलर आ गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको। ठीक है, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर आफ्टर इंसर्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स। After insertion of these elements, so basically what these value indicates not the priority but the array. Okay, so आपको W को insert K को insert करना है थर्ड एरे में। K को insert करना है थर्ड एरे में। तो what was the initial situation of third array? Front was 1, rear was 1. So after insertion of K क्या हो जाएगा, फ्रंट तो 1 रहेगा, रेयर 2 हो जाएगा। K will take the second position. ठीक है, नेक्स्ट F और 5। तो F की पहले इनिशियल स्ट्रक्चर देख लो। F एरे दैट मीन्स फिफ्थ एरे में 4 पे था हमारा एरे, फ्रंट भी 4 था, रेयर भी 4 था। एंड नाउ आफ्टर इंसर्शन ऑफ F फ्रंट तो 4 रह जाएगा पर रेयर बन जाएगा 5। ओके, एंड W, 2। W मतलब सेकेंड एरे का इनिशियल स्ट्रक्चर था कि फ्रंट 1 था और रेयर 4 था, बट अब W के इंसर्शन के बाद फ्रंट 1 रहेगा और रेयर बन जाएगा 5। ठीक है, सो दिस वाज वन थिंग। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इफ आफ्टर द प्रीसीडिंग इंसर्शन 3 एलिमेंट्स आर डिलीटेड। अब हम उसमें से 3 एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। सो सपोज करो कि फ्रंट, ये बी पार्ट है। आफ्टर डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू अकॉर्डिंग टू फीफो रूल रिजल्ट्स इन फिगर दिस। ठीक है, फ्रंट भी 0 हो गया, रेयर भी 0 हो गया, क्योंकि ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, फर्स्ट 3 को ही डिलीट कर रहे हैं क्योंकि डिलीशन फ्रंट से होता है, कहीं से भी जाके डिलीट तो नहीं कर सकते। तो क्यू प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से A डिलीट होगा, Z डिलीट होगा और P डिलीट होगा। तो अगर ये दोनों डिलीट हो गए तो फ्रंट 0, रेयर 0। और यहाँ पे पहले P था फर्स्ट पोजीशन पे, बट अब वो डिलीट हो रहा है, तो नया फ्रंट Q बन जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका नया फ्रंट 2 है और रेयर 5 है, ये तो 0 0 हो गया। सो दिस इज इट। And now a very small topic, that is your difference between your queue and the stack. ठीक है, so just I'm going to, it's very simple to understand. क्यू में हम एलिमेंट्स को एक एंड से इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से रिमूव करते हैं, whereas in stack इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों सेम एंड पे होता है। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल या प्रिंसिपल लगता है, जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलती है। यहाँ पे रिवर्स होता है स्टैक में, जो लास्ट अंदर आता है उसकी सर्विस पहले होती है। ठीक है, अब इफ इट रिक्वायर्स 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 वेरिएबल्स रिक्वायर होते हैं, एक फ्रंट और एक रेयर, जो क्यू को मेंटेन करते हैं। फ्रंट में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेयर पे एंडिंग पॉइंट होता है। बल्कि स्टैक में एक ही वेरिएबल की ज़रूरत होती है क्योंकि दोनों ऑपरेशन एक ही एंड पे होते हैं। तो टॉप जो है ओनली उसकी ज़रूरत होती है स्टैक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इवन इफ स्पेस इज वेकेंट एंड ओवरफ्लो में अकर, ये बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि क्यू में ओवरफ्लो होने की चांसेस हो जाते हैं अगर सामने से डिलीशन हो चुका है, बट इंसर्शन जो है वो 5th तक पूरा दिखा रहा है, मतलब मैक्स क्यू वैल्यू 5 है, तो सामने डिलीशन होने के बाद खाली क्यू है, खाली एरे है, बट फिर भी नया एलिमेंट आएगा नहीं, स्पेस वेकेंट है, फिर भी ओवरफ्लो दिखाएगा। यहाँ पे कभी ओवरफ्लो होता ही नहीं है, कैन नॉट अकर इन स्टैक अंटिल स्टैक पूरा भरता नहीं है, तो वो ओवरफ्लो नहीं होता क्योंकि हम टॉप पे ही वर्क कर रहे हैं ना, 2 एंड्स का यहाँ पे यूज ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायोरिटी क्यू कैन बी असाइन टू अ क्यू एलिमेंट। किस इनमें प्रायोरिटी असाइन की जा सकती है, प्रायोरिटीज कैन बी असाइन टू क्यू एलिमेंट। यहाँ पे ऐसा प्रायोरिटी जैसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रायोरिटीज आर नॉट असाइन। इंसर्शन डिलीशन कैन बी पॉसिबल फ्रॉम बोथ एंड यूजिंग वेरिएशन ऑफ डी क्यूज। सो डी क्यूज का यूज करके हम इंसर्शन डिलीशन दोनों
दोनों एंड पे कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इंसर्शन और डिलीशन इज पॉसिबल फ्रॉम ओनली वन एंड, इन नो केस स्टैक में आप दोनों एंड का यूज कर सकते हैं। तो स्टैक में तो सिर्फ टॉप पे ही वर्क होता है। क्यूज के कुछ वेरिएशंस थे, वैसे तो नॉर्मली क्यू में सिर्फ इंसर्शन एक एंड पे होता है और रिमूवल एक ही एंड पे होता है, बट अगर हम डी क्यूज का वेरिएशन लगाए तो फिर इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड पे हो सकते हैं। इसमें एक वेरिएशन और पड़ा था, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। उसमें ऐसा हो जाता है कि डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है बट इंसर्शन एक ही एंड से होगा, या इंसर्शन दोनों एंड से हो सकता है बट डिलीशन एक ही एंड से होगा। सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यू। एज वी नो, इन क्यू आइटम कैन बी एडेड एट रेयर एंड एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट एंड। हमें नॉर्मली तो यही पता होता है कि जो हमारा क्यू है उसमें एडिशन होता है रेयर एंड पे, बैक साइड पे, और डिलीशन जो होता है वो सामने से होता है। ये अबव ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। अब इसी ऑपरेशन को लिंक लिस्ट का यूज करके हम कर सकते हैं by using the concept of adding nodes। हम नए nodes add करेंगे at the last। We can add a new item at the rear node and similarly by applying the concept of deleting the node from the beginning, और सामने से node delete कर देंगे, we can implement। तो basically ये बहुत simple है। सपोज ये क्यू है, नया एलिमेंट रेयर पे ही ऐड होता है, तो फिर आप ऐसे न्यू नोड्स ऐड करते जाओगे, इंसर्शन होता जाएगा। डिलीशन तो और सिंपल होता है, जो फ्रंट पे होता है तो फ्रंट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, अगर इसको डिलीट करना है तो फ्रंट पॉइंटर इसको ना पॉइंट करते हुए डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। सो दिस कैन बी डन यूजिंग लिंक लिस्ट। दिस इज अ लिंक लिस्ट। वी हैवंट स्टार्टेड विथ लिंक लिस्ट। द नेक्स्ट यूनिट इज लिंक लिस्ट, सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक व्हेन वी डू दैट in the next class. So basically this algorithm that is to insert an element in queue using linked list and to remove an element from queue using linked list, we are going to see when we actually begin with the linked list topic. So this is it on queues. Please study everything. If you have doubts, ask me. Thank you so much.